Okay, friends, again I welcome you in our next lecture. It is income from capital gain. This is our second lecture. In last class, we discussed the charging section, section 45.1, and the section of transfer, that is section 247, and the definition of capital asset, section 240. Okay, let us have a recap, a fast recap. Charging section. Okay, so section 45.1 is a charging section, and this charging section, what does it say? Charging section 45.1 says that any profit or gains from transfer of a capital asset during previous year is taxable under the head income from capital gain. Okay, so two terms are important. One is capital asset, that means what is the meaning of capital asset, and second is the transfer. So we had discussion on capital asset. So what are capital assets? Let us summarize what are capital asset. Capital assets. So capital assets means any property of any kind, whether it is connected with the business or not. And second, it excludes some assets and it includes some assets. So एक बार देखते हैं बहुत fast revision. Any property of any kind, whether connected with business or not, it may be movable or immovable. It may be tangible or intangible. Intangible example देखा था हमने, जैसे goodwill. कुछ examples हमने दिए, जैसे land, building. Let me take highlighter. Okay, so any property of any kind, whether connected or not with the business. It may be immovable or movable. It may be tangible or intangible. हमने example देखा था goodwill. Then land, building, vehicles, patent, trademark, jewelry, shares, debentures, etc. Vehicle means vehicles of business. Personal vehicles are not capital asset, है ना? वो हमने यहाँ देखा था. Clear? Next, it excludes some assets have been excluded. So stock in trade in which a businessman deals is not an asset. Personal properties, movable personal properties, any property which is personal, okay, and movable, personal or movable. And rural agriculture land, हमने देखा था rural, not urban, only rural agriculture land. Then gold deposit bonds, they are not capital assets. फिर हमने rural agriculture land को देखा था, तो aerial distance देखा था up to 2 kilometer. If any area where the municipal board having the population of more than 10,000 is urban area, is an urban area. Okay, and then हमने देखा था अगर 2 किलोमीटर तक का एरियल डिस्टेंस हो तो उस एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच हो, 6 किलोमीटर तक का एरिया जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख और 10 लाख के बीच हो, और 8 किलोमीटर तक का एरिया जहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख. क्लियर? तो एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट प्रॉपर्टी, इज नॉट एन एसेट. देखते हैं फिर इंक्लूड्स कुछ चीजें, कुछ एसेट्स हैं वो पर्सनल हैं. इंपॉर्टेंट बात क्या है? दे आर पर्सनल. ऑल्दो दे आर पर्सनल देन ऑल्सो दे आर एसेट्स. तो कौन कौन सी है? ज्वेलरी. तो ज्वेलरी में हमने देखा था, ज्वेलरी का मीनिंग देखा था. There are so many assets, different types of assets. They are also included in jewelry. They are deemed as jewelry. जैसे यूटेंसिल्स हैं, अगर गोल्ड के हैं तो वो ज्वेलरी हैं. सिल्वर के हैं अगर लिमिटेड क्वांटिटी में है तो नहीं है. फिर आइडॉल है, वो भी ज्वेलरी है. गोल्ड बार हैं, बिस्किट्स हैं, तो वो भी ज्वेलरी है. फर्नीचर है, वो भी ज्वेलरी है. सोफा है, वो भी ज्वेलरी है. एपरल्स है, वो भी ज्वेलरी है. Am I audible? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, आ रही है. Very good, very good. Drawing, paintings, sculptures, archaeological collection, and any other work of art. They all are capital asset. They are capital asset. ये capital assets हैं. Clear? हमने डिस्कस भी किया था कि ये क्यों है capital asset, क्योंकि ये सारे जो capital assets हैं इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है. और कुछ और पर्सनल इफेक्ट हैं, पर्सनल एसेट्स हैं
अपार्ट देन दोज, जैसे एग्जांपल हमने देखा था सोफा है, कार है, वॉच है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इन सब की वैल्यू टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो क्योंकि टाइम के साथ वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये कैपिटल असेट नहीं है। क्लियर? ये हमने डेफिनेशन देखी थी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रांसफर। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? सेक्शन 47 defines the transfer. ट्रांसफर, द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये डेफिनेशन ऐसी है कि इसमें और भी कुछ इंक्लूड हो सकता है। तो देखो ट्रांसफर में हमने देखा था इट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स मींस इट्स अ वेरी वाइड मीनिंग, एंड एनी अदर ट्रांसफर लाइक दीज ट्रांसफर्स मे आल्सो बी इंक्लूडेड। क्लियर? तो देखा था सेल, सेल सभी समझते हैं, एक्सचेंज सभी समझते हैं, हमने एक्सचेंज किया, जैसे हमने लैंड सेल की और लैंड एंड बिल्डिंग उसके एक्सचेंज में ली, कोई एसेट दी और दूसरी एसेट ली, जैसे हमने ज्वेलरी दी और उसके अगेंस्ट में कोई एसेट ली, तो एक्सचेंज। एंड रिलिंक्विशमेंट, हमने देखा था रिलिंक्विशमेंट क्या होता है, वॉलंटरीली, जब आप वॉलंटरीली कुछ अपने राइट्स या कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था आर्मी का, यू डोनेटेड योर रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, एनी टाइप ऑफ लैंड टू द आर्मी। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट यानी आपका राइट ले लिया, किसी भी ट्रांजैक्शन में आपका राइट ले लिया, जैसे एक्सटिंग्विशर होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर सुना है ना, फायर एक्सटिंग्विशर? यस सर, आग बुझाता है, जो आग बुझा देता है, आग को खत्म कर देता है, क्या कर देता है, आग को खत्म कर देता है। तो ऐसे ही एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट का मतलब आपके राइट को खत्म कर देना। किसी भी एसेट में अगर आपका राइट है और आप अपना राइट सेल कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट। बेस्ट एग्जांपल था जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो आपका प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हो गया तो वो भी क्या है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट। क्लियर? लेकिन प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन एक एग्जांपल है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपके पास कोई लैंड है, आपने उस लैंड में आपके बिल्डिंग है और लैंड है, लैंड अपार्टमेंट देयर टू, उसके आसपास की लैंड है, वो भी कैपिटल एसेट होती है। तो वो कैपिटल एसेट है, उसका कोई राइट आपने किसी को दे दिया, छोड़ दिया राइट, जैसे आपने कह दिया हम यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं करेंगे, तो ये राइट अगर आपने दे दिया किसी को तो वो भी क्या है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, किसी भी तरह का राइट आपसे ले लिया गया किसी ट्रांजेक्शन। देन कंपलसरी एक्विजिशन, ये भी देखा था हमने। कंपलसरी एक्विजिशन जैसे देखते हैं ना सभी, मास्टर प्लान रोड होता है या जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट है, क्लियर, किसी भी तरह का नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, जैसे हाईवे है, सुपर हाईवे है, ऐसा कुछ भी प्रोजेक्ट है तो जिसमें गवर्नमेंट ने कंपलसरीली एक्वायर कर ली आपकी प्रॉपर्टी, इधर इट इज लैंड और बिल्डिंग और एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो भी क्या है, ट्रांसफर है। फिर है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट में आपका स्टॉक को कैपिटल एसेट में ट्रांसफर कर दिया। जैसे स्टॉक को कैपिटल एसेट में ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप डील करते थे, आपके पास स्टॉक था, जैसे आप ज्वेलरी शॉप थी, जैसे तनिष्क है ना, तनिष्क ज्वेलर है, तो आपकी ऐसी शॉप थी ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी की शॉप थी तो वो आपके लिए क्या था, ज्वेलरी जो है वो सारा कैपिटल स्टॉक है। या बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बिल्डर हैं और आपके पास बहुत सारे हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, देखते हैं। क्लियर? तो जैसे कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट, तो स्टॉक, जैसे पेन लेके आपको समझाते हैं, ये समझना पड़ेगा। देखते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट, जैसे देखते हैं आपके पास बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे बिल्डिंग्स थी, ठीक है, और आप कौन थे, आप बिल्डर थे, आप बिल्डर थे और बहुत सारी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, ठीक है, एक बड़ी बिल्डिंग थी, और आप क्या कौन है, बिल्डर है, डेवलपर है। क्लियर? तो आप क्या करते हैं, यू डील इन दीज बिल्डिंग्स, आप इन बिल्डिंग्स में डील करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं इन बिल्डिंग्स को। तो सेल परचेज का काम करते हैं तो ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी बिल्डिंग आपके लिए क्या होंगी, स्टॉक होंगी ना, बताओ? स्टॉक होंगी, क्योंकि जिस जो भी बिजनेसमैन जिन गुड्स में डील करता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें हम स्टॉक बोलते हैं। क्लियर है? स्टॉक। जैसे कार डीलर के लिए कार्स क्या है, स्टॉक,
स्टॉक। है ना। बिजनेसमैन कार परचेज कर लेगा, फिर वो अपनी बैलेंस शीट में शो करेगा, उसके लिए कैपिटल एसेट हो सकती है, लेकिन जो कार डीलर है उसके लिए कार्स क्या है, स्टॉक है। क्लियर। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर क्या है, स्टॉक। लेकिन हो सकता है आपने बिजनेस में वो फर्नीचर परचेज कर लिया, तो आपके लिए वो फर्नीचर क्या हो सकता है, आपके लिए वो फर्नीचर हो सकता है कि वो कैपिटल एसेट हो। क्लियर। तो ये हो सकता है। क्लियर। देखते हैं। तो ये जो बिजनेसमैन है जिनके पास बहुत सारे हाउस हैं, उनके पास ये हाउस क्या है, उनके लिए स्टॉक है। हाउस क्या है उनके लिए, स्टॉक। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये वाला जो हाउस था एक, इस हाउस को उन्होंने अपना ऑफिस बना दिया, किसी एक पर्टिकुलर डेट से ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। सपोज उन्होंने 1/7/2019 से इसे कन्वर्ट कर दिया ऑफिस में। तो क्वेश्चन ये आया, पहले ये क्या था, स्टॉक। ठीक है। जैसे आपका प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर में 1/7/19 से पहले तक वो क्या था, स्टॉक। और उसके बाद क्या हो गया, कैपिटल एसेट। किस डेट के बाद, इस डेट के बाद। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो है ये ट्रांसफर है कि नहीं, ये ट्रांसफर माना जाएगा कि नहीं, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। बताओ। यस यस। तो ये क्या है, ये कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट, दिस इज डीम्ड एज ट्रांसफर। तो ये क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। क्लियर है। ठीक है। क्लियर है। चलो यस देखते हैं। फिर है मेच्योरिटी ऑफ रिडेम्पशन, मेच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। तो आपके जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, हमने डिस्कस किया था, जिन पे इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसे बॉन्ड्स जिन पे आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, वो बॉन्ड्स अगर आपने सेल किए तो वो भी क्या होगा, वो बॉन्ड अगर सेल आपने मेच्योरिटी पे ट्रांसफर, तो वो भी क्या होगा, मेच्योरिटी पे अगर रिडेम्पशन हुआ, मेच्योरिटी हुआ या रिडेम्पशन हुआ किसका, जीरो कूपन बॉन्ड का, जिन पे इंटरेस्ट नहीं मिलती, हमने डिस्कस किया था ना। और पार्ट ट्रांसफर ऑफ सेक्शन ये 53A है, दिस इज 53A। क्लियर। ए ऑफ टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53A में अगर ट्रांसफर होता है तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा, जिसमें आपने एसेट्स ट्रांसफर कर दी और प्रॉपर्टी आपने पोजीशन ले लिया और पेमेंट कर दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई, तो भी वो क्या माना जाएगा, वो ट्रांसफर माना जाएगा। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन भी क्लियर सभी को, क्लियर बोलो। यस यस सर। वेरी गुड। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। सो कैपिटल एसेट्स, एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कैपिटल एसेट्स को हम इनकम टैक्स कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एंड लॉन्ग टर्म। Short term and long term. Now the question arises, why we distinguish capital assets into two parts, short term and long term? Because the rates are different. Long term बहुत सिंपल, शॉर्ट अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो लॉन्ग टर्म मतलब ऐसे जिनका होल्डिंग पीरियड ज्यादा है, आपने ज्यादा समय तक रखा है, लॉन्ग टर्म तक आपने परचेस किया। तो कोई भी एसेट ऐसी जिसमें आपने लॉन्ग टर्म तक परचेस किया है, तो गवर्नमेंट उस पर कम रेट से टैक्स लेना चाहती है, और जो शॉर्ट टर्म होती है उन पे ज्यादा रेट से टैक्स लेना चाहती है। क्लियर। क्लियर। तो ज्यादा रेट से लेना चाहती है। सिंपल अगर बात करें तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, इन पे जो टैक्स रेट होता है लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का टैक्स रेट होता है 20%, एट द रेट ऑफ 20%। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स जो होती हैं, उन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे जो टैक्स लगता है वो लगता है स्लैब रेट। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए स्लैब रेट, और बाकी जो भी कंसर्न होता है उनका जो भी रेट एप्लीकेबल होता है उस रेट से। क्लियर। तो स्लैब रेट में तो जो हाईएस्ट रेट होता है वो 30% होता है ना, बताओ। यस सर। इंडिविजुअल का हाईएस्ट रेट 30% होता है ना। और कंपनीज के केस ऑफ फॉरेन कंपनी का तो 40% भी होता है, 40% कंपनीज का 30% होता है। तो ये जो रेट होता है शॉर्ट टर्म का जो टैक्स रेट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और लॉन्ग टर्म फ्लैट रेट से टैक्सेबल होते हैं 20% से।
तो इसलिए गवर्नमेंट डिवाइड करती है, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसने डिवाइड किया है एसेट्स को टू पार्ट्स में, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्लियर? हम शॉर्ट में बोलते हैं एसटीसीए एंड एलटीसीए। अब देखते हैं डिवीजन कैसे करते हैं। तो डिवीजन करते हैं होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे। किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड Holding मतलब period. परचेज से, होल्डिंग पीरियड मतलब परचेज से सेल की डेट। आपने किस डेट को परचेज किया? जैसे आपने कोई एसेट को परचेज किया 1/1/19 को, ठीक है, और सेल किया 31/12/19, तो इसका होल्डिंग पीरियड कितना 1 हुआ? year, 1 ईयर। और मंथ्स में बात करें तो 12 मंथ्स। 12 मंथ्स months. में बात करें तो 12 मंथ्स। क्लियर? 12 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड। क्लियर है? तो होल्डिंग पीरियड में क्या Yes, करते हैं? sir. क्या करते हैं, जिस दिन आपने परचेज किया वो दिन आपके में इंक्लूड होता है, और जो दिन सेल किया वो दिन बायर के हाथ में इंक्लूड होता है। तो ये जो पूरे दिन है, ये सारे डेज मिला के एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर जो सेलिंग डे है वो डे और परचेजिंग डे वो दोनों इंक्लूड होंगे अगर 12 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है। क्लियर? क्लियर है? तो Yes, ये sir. कितना टाइम हुआ? 12 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड हुआ। तो इसे कहते हैं होल्डिंग पीरियड। अब देखते हैं कि किन किन एसेट्स के लिए क्या क्या डिवीजन क्राइटेरिया है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया, लिस्टेड सिक्योरिटीज यूनिट्स के अलावा, या यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या जीरो कूपन बॉन्ड। इन तीन चीजों के लिए लिस्टेड सिक्योरिटीज क्या होती है? जो लिस्टेड हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। एनी सिक्योरिटी विच इज लिस्टेड in any of the recognized stock exchange, किसी भी तरह के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। क्लियर? जैसे हमारे कंट्री में एनएसई और बीएसई तो सबने सुना है, एनएसई और बीएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं। क्लियर? तो किसी भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी होता है, ओटीसीआई। तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं सिक्योरिटीज, या फिर यूनिट्स हैं यूटीआई की, या जीरो कूपन बॉन्ड। इनके लिए जो टाइम पीरियड है वो 12 मंथ्स। 12 मंथ से कम अगर आपने होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ या उससे ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म। क्लियर है? ओके सर। पर्पस है, गवर्नमेंट ध्यान से देखो, गवर्नमेंट कह रही है लॉन्ग टर्म पे हम टैक्स कम रेट से लेंगे। लॉन्ग टर्म पे जो टैक्स रेट रहेगा वो लो टैक्स रेट रहेगा। तो निशी शर्मा इज जॉइनिंग नाउ। तो ये जो टैक्स रहेगा वो कैसा रहेगा? लो रेट से रहेगा। लॉन्ग टर्म की कैपिटल टैक्स रेट क्या होती है? एलटीसीए की लो रेट। तो लो रेट से रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं वो आप ज्यादा समय तक होल्ड करें या कम समय तक। एक बार आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स परचेज करें तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उन्हें आप ज्यादा समय तक होल्ड करें या डेली सेल परचेज करते रहें? बताओ। ज्यादा टाइम तक होल्ड करना। ज्यादा टाइम तक होल्ड करें। होल्डिंग पीरियड ज्यादा रहेगा, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहेगी, मार्केट में फ्लक्चुएशन कम रहेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है तो हम केवल 12 महीने का टाइम दे रहे हैं आपको। 12 मंथ्स तक होल्ड कर लोगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो टैक्स रेट कंपैरेटिवली लो रेट से लगेगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट डिवीजन है क्राइटेरिया अनलिस्टेड शेयर्स। तो अनलिस्टेड शेयर्स होंगे या इमूवेबल प्रॉपर्टीज होगी। देखो लिस्टेड तो सिक्योरिटीज यहां आ गई ना, अनलिस्टेड शेयर्स केवल शेयर्स, केवल शेयर्स। इसका मतलब अगर अनलिस्टेड डिबेंचर्स होंगे, ध्यान से देखो, तो वो यहां आएंगे। अनलिस्टेड शेयर्स मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी के शेयर कंपनीज है वो। यस प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के शेयर्स, या किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स भी जिन्होंने लिस्टिंग नहीं कराई है। बहुत छोटी सी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने लिस्टिंग नहीं कराई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी लेकिन उन्होंने कलेक्शन नहीं किया है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर? तो अनलिस्टेड डिबेंचर्स अगर होंगे तो वो यहां आएंगे। अनलिस्टेड शेयर्स यहां केवल क्या आ रहे हैं? शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टीज का मतलब लैंड, बिल्डिंग और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर? ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनके लिए क्राइटेरिया क्या है? 24 मंथ्स। 24 मंथ से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म। क्लियर है? और बाकी सारी असेट्स के लिए, एनी अदर असेट, सभी असेट्स के लिए क्राइटेरिया है लेस देन 36 मंथ्स और मोर देन 36 मंथ्स। क्लियर? तो अदर असेट्स देखो, एक तो हमने एग्जांपल ये लिख दिया अनलिस्टेड डिबेंचर्स, फिर ज्वेलरी, है ना,
ज्वेलरी, ये जितनी भी असेट्स थी ना, यहाँ हमने देखा था कैपिटल असेट की डेफिनेशन देखो, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब क्या कहाँ आएंगे? ये सब यहाँ आएंगे। क्लियर? क्लियर है? ये जितनी भी ज्वेलरी, एनी आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। तो ये दोबारा रिपीट करना एक बार। ओके बेटा, एनी अदर असेट, दो असेट्स हमने देख लिया, दो डिवीजन, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड जीरो कूपन बॉन्ड। एक हाइलाइटर लेते हैं। देखो हमने ये देख लिया ना, लिस्टेड, देखो लिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड जीरो कूपन बॉन्ड, इनके लिए क्या था क्राइटेरिया? 12 मंथ से कम या 12 मंथ या उससे ज्यादा। ठीक है, ओके। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स जो लिस्टेड नहीं है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, और इमूवेबल प्रॉपर्टीज यानी लैंड एंड बिल्डिंग, उनके लिए क्राइटेरिया क्या है? 24 मंथ्स या 24 मंथ से ज्यादा। ठीक है, इनके अलावा तो बहुत सारी और एसेट्स हैं ना, जैसे हमने एग्जांपल दिया, अनलिस्टेड डिवेंचर्स हैं, ज्वेलरी है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, एनी वर्क ऑफ आर्ट, कुछ भी ऐसी एसेट है। और बिजनेस की एसेट्स जो कार हैं, जो और एसेट्स हैं, वो कौन सी एसेट्स? केवल पर्सनल इफेक्ट ही तो एग्जेम्प्ट होते हैं। बिजनेस की अगर एसेट है तो बिजनेस की कैपिटल एसेट तो सारी टैक्सेबल होती है। तो बिजनेस की कोई कैपिटल एसेट है तो वो एसेट सारी यहाँ कहाँ आएंगी? यहाँ आएंगी। अनलिस्टेड डिबेंचर्स, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिजनेस के। तो वो जितने भी बाकी बच गई एसेट, ये रेजिडुअल है, टॉपिक पॉइंट है, सारी बाकी एसेट्स के लिए क्राइटेरिया क्या है? लेस देन 36 मंथ्स और मोर देन और इक्वल टू 36 मंथ्स। ये बात समझ में आती है? यस सर। क्लियर? तो आपको क्लियर है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती है और शॉर्ट टर्म क्या होती है? क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। अब कंप्यूटेशन, अब देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एसेट। ये पूरा टेक्स्ट है जो हम आपको नोट्स देंगे। मीनिंग देखो, ये दिखा है ना, मीनिंग हमने डिस्कस किया, फिर ट्रांसफर टू 47, फिर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हमने चार्ट के थ्रू देखा। हम सारा चार्ट के थ्रू देख रहे हैं, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये टेक्स्ट है लेकिन हमने तो चार्ट के थ्रू देखा। टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, अच्छा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करते हैं तो कैपिटल गेन कैसा होता है? शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म को सेल करते हैं तो कैपिटल गेन कैसा होता है? लॉन्ग टर्म। ये बात भी समझ में आती है सभी को? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करेंगे तो कैपिटल गेन कैसा होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म एसेट को सेल करेंगे तो कैपिटल गेन कैसा होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? अब देखते हैं कंप्यूटेशन, हाउ वी कंप्यूट। क्लियर? देखो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। जो टेबल है दैट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है। फिर उसका जो और बैकग्राउंड मटेरियल है, जो और चीजें एप्लीकेबल होती हैं वो है, लेकिन कंप्यूटेशन है वो सबसे इजी है कैपिटल गेन हेड का। देखो क्या है, सिंपल। सबसे पहले हम लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दैट मींस आपने जो सेल प्राइस, सेल कितने में किया सेट, तो ये ले लिया ना। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सेल प्राइस। क्लियर? बताओ, सेल प्राइस, सर आपने सेल प्राइस नहीं मैं सर। चलो हम इसे पेन लेके करते हैं, बता आपको फिगर्स लेके समझाते हैं। सर नोट्स ऐप प्रोवाइड करा दिए सर, बिल्कुल अभी पढ़ा नहीं है थ्योरी खुद से। ओके, आप लोग पढ़ लेना, हम प्रोवाइड करा देंगे। देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इसे बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, FVOC। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ये सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सेल वैल्यू, कितने रुपए की आपने एसेट्स को सेल किया। मान लेते हैं बिल्डिंग है ना, ये मान लेते हैं बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग आपने सेल किया, वो 10 लाख रुपए की आपने सेल किया, यानी आपके पॉकेट में कितने पैसे आए? 10 लाख रुपए में सेल किया। ठीक है, बिल्डिंग को आपने सेल किया। क्लियर? यस सर। 10 लाख रुपए आए। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस। अब ठीक है, इसे ले लेते हैं, ठीक है, 10 लाख, इसे मान लेते हैं
सर 12 बजे हमारी क्लास है सर, बस बस ओवर कर रहे इन्वेस्टमेंट हैं। की। ओके ओके ओके, बस बेटा ओवर कर रहे हैं। ठीक है, देखो आपके पास 10,20,000 रुपीज विद इन 5 मिनट्स आई विल वाइंड अप। 10,20,000 विद इन 5 मिनट्स कर दीजिए। 10,20,000 आपके पास आए, आपने बिल्डिंग को सेल किया, तो सेलिंग एक्सपेंस, सेल करने में कुछ एक्सपेंस होते हैं ना, यस बताओ। सर। सेल करने में यस जैसे सर। ऑक्शन प्राइस, कमीशन, ब्रोकरेज यस कमीशन, सर। कुछ भी एक्सपेंस। तो सपोज 20,000 रुपए का 20,000 का आपका सेलिंग एक्सपेंस हो गया, आपने कमीशन वगैरह पे किया। नेट पॉकेट में आपके हाथ में कितने आए? 10 लाख। 10 लाख। ये जो एसेट थी इसकी कॉस्ट होगी ना, परचेज प्राइस, यस सर। कुछ ना कुछ परचेज प्राइस होगा ना, 10 यस लाख। सर। 10 लाख, तो इसका परचेज प्राइस था, मान लेते हैं 6 लाख। अभी हम मान रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, तो 6 लाख रुपए इसका परचेज प्राइस था, वो माइनस कर दिया, तो बाकी क्या बचा? 4 लाख। ये 4 लाख रुपए आपका क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म नहीं, अभी गेन, शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन। ओके ओके। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म में कुछ और बातें हैं, इंडेक्सेशन होता है, वो डिस्कस करेंगे अभी, एक लेक्चर और लगेगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है ना? यस सर। इट्स वेरी सिंपल। ये यस क्या है देखो, ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस किया? कमीशन माइनस कर दिया, तो इतना नेट कंसिडरेशन आ गया, उसमें से ये कॉस्ट माइनस कर दी। ऐसे ही तो कंप्यूट करते हैं, किसी बच्चे को भी बोलोगे क्या कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे करोगे, तो वैसे ही करेगा, सिंपल। तो ऐसे ही हम, यस सर। क्लियर है? इतना समझ में आता है? यस ठीक है, सर। ओके। तो यहीं वाइंड अप करते हैं आज, नेक्स्ट क्लास एक और लेंगे, वन मोर क्लास इज नीडेड एंड देन वी विल बी एबल टू कंप्लीट अवर दिस टॉपिक। क्लियर? ठीक है, ओके, सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू एवरीवन।